Good morning, everyone. So today we are going to start principles of plant pathology course, in which we will deals with the defense mechanisms in plant. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्लांट्स है वो रिप्रेजेंट करता है प्लांट रिप्रेजेंट अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर many organisms including fungi, bacteria, viruses, nematode, insects and vertebrates. So the plants it has a lacking an immunity system as comparable to animals, and plants have developed a stunting array of structure जो कि हम chemicals and proteins का based होता है डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस डिजाइन होता है ये डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को और स्टॉप करता है before entering them into the host plant, and they are able to cause which cause the organism which able to cause the extensive damage. Okay, so here each plant species is affected by approximately around 100 different kinds of fungi से affected होता है. So bacteria, these are fungi, bacteria, molecules, viruses and nematodes. So here we required a kind of different mechanisms for plant to uh, to defend themselves. So the host a living organism from which other organism derive its food, that is called host. And what do you mean by pathogen? The pathogen, any agent or living organism or viruses which can cause a disease in the host. And what do you mean by resistance? The resistance means the ability of an organism to exclude or overcome completely or in some degree the effect of pathogens or other damaging factors we can see. Okay, so here defense mechanism in spite of many kinds of diseases attacking the a single plants attacking a single plants species, and hundreds and thousands of fungal spores or bacterial cells reaching the host. Okay, so इसमें क्या होता है कि जो species है वो survived करती है, species have survived. तो so इसमें क्या होता है कि जो अटैक होता है इंडिविजुअल का वो सफर करता है पार्शियली या कंप्लीटली डैमेज्ड हो जाता है इसमें, बट अदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आइदर वो टॉलरेट करता है अटैक ऑफ पैथोजन को और रिमेन अनइन्फेक्टेड होता है इसमें. तो जो प्लांट डिफेंड करता है देमसेल्फ बाय टू वेज, एक तो होता है प्री इन्फेक्शियस जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, और एक होता है पोस्ट इन्फेक्शियस. So here what had happened, they have built some kind of mechanism in defense to respond or to attack with suitable post infectious activity that enables them to survive in the presence of so many kinds of diseases around them. So इस mechanism में क्या होता है कि ये develop करता है in a plant during the co-evolution with the pathogens through changes in genetical makeup. ठीक है, so through this activations or dormant the pre-existing resistance जो होता है resistance genes are developed. So here what had happened, the pathogen host relations have been known to man since the earlier days when he started cultivation of plants and provide the basic for selection of resistance individual for cultivations, and also the reason for understanding the mechanism, the way through which the natural methods or the disease development could be developed. So here what had happened, the host and the plant relationships among the which found the scientists that the important viewpoint for the epidemiology, because what had happened, the defense mechanism in the plant population determine that the course of endemic or the great extent has been variable.
So here the natural basis of resistance in plants to attack of pathogen, okay, is the subject of matter here. And what had happened, uh, uh, through this defense mechanism we can understood the way through which our plants are protect themselves from these pathogens. So a plant can be successfully invaded by pathogen or not is determined by a genetical characters of the plant and the pathogen. Just like cereal rust, it do not attack mango. Okay, so a specific a specific species or pathogen attacked a specific crop. Okay, just like cereal rust do not attack mango, chili pea or pea, this because it have a that cereals genetical, so it different from plant to plant and species to species. It vary according to them. It are affecting, it are infecting the plant. Okay, so there should be a kind of compatibility must be there, so the plant can the plant could protect themselves. Okay, and genetically control requirement also must be there, so in such manner the uh, plant can get protect themselves from pathogens. So what had happened if a cereal rust fungus attacked, suppose, okay, attacked a wheat crop, the degree of those invasions and the types of reactions will be vary. Okay, it's among different varieties of the crops. It will vary from different varieties of crop. If we talk about genetical differentiation, so what had happened among the varieties, there has been a I can say there has been a differences in their pathogenesis. Okay, so it depends on plant. Okay, so how it resistance or the susceptible and the degree of this quality is determined only on plants. Its genetical makeup will determine that pathogen will affect the plant or not. Okay, and the plant must be recognized and accept the parasitism or the compatibility, I can say, with the for this association that leads to condition, and that one is known as diseases. So here so here what had happened, the plant pathogen system, we are going to here study how the plant and the pathogen uh, uh, will work together and form a relation so that host will protect themselves. Okay, so basically these are of two types, that is structural and biochemical. Through structural and biochemical we can understood how the plant will get a defense mechanism. A defense mechanism, first of all, I told you that pre-infectious or pre-existing and post-infectious. In pre-infectious, we will find that the structural defense mechanism is there, and the biochemical defense mechanism. That one is induced defense mechanism. Okay, in post-infectious also we can see the structural defense mechanism as well as the biochemical, that one the induced defense mechanism we will see here. So in this describe in this way we can see the defense mechanism. So the structural or the morphological characteristics that act as a physical barrier, जो structure और morphological characteristics होते हैं plant के, it act as a physical barrier के जैसे ये act करते हैं, and a biochemical structure that take place in the cell and the tissue that are either toxic होगा या तो either toxic to the pathogen or create some kind of conditions or create some kinds of these conditions so that it inhibit the growth of the pathogen. Okay, तो इसमें स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि ये ऑलरेडी मॉर्फोलॉजिकल इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट में, जो कि एक ना आपको बैरियर टाइप का बना देगा, एक फिजिकल बैरियर बना देगा पैथोजन को कि वो एंट्री नहीं कर पाए प्लांट के अंदर.
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्स वगैरह हो गया, क्यूटिकल्स हो गया प्लांट में, तो ये एक ना फिजिकल बैरियर के फॉर्म के जैसे क्रिएट होता है कि ताकि जो पैथोजन है वो एंट्री ना कर पाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो ब्रिंजल है, ठीक है, तो एग प्लांट जिसे कहा जाता है, तो ब्रिंजल में क्या होता है कि उसकी जो लीव्स है ना, उसकी लीव्स में छोटे छोटे से स्पाइन से होते हैं, तो वो पैथोजन को एक तरीके से वो जो स्पाइन्स है वो पैथोजन को पैथोजन से प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप में। ठीक है। लाइकवाइज सम प्लांट्स हुज लीफ वर लाइक वैक्सी, वैक्सी उनकी लीव्स कैसे होती है, पूरी वैक्स से कवर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैथोजन उसमें जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है। लाइकवाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं पैथोजन में, वो क्या होते हैं, जैसे अगर उनको पता चला कि पैथोजन आ चुका है, ठीक है, तो वो ना एक टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं अपने टिश्यूज से, वो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं और ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि पैथोजन इनहिबिट ना कर पाए, ठीक है, अपना ग्रोथ ना कर पाए पैथोजन। तो अब हम देखेंगे जो पैसिव और प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो द पैसिव और द प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस, और वी कैन से प्री इन्फेक्शियस जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इन्वॉल्व होती है एक मैकेनिकली और स्ट्रक्चरल बैरियर के तरीके से। ठीक है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, such in the way as a waxy cuticle, and it have a thick epidermal cell wall which consists of the structure of natural opening is there. Okay, so what had happened कि बायोकेमिकल जो बैरियर है, इट एक्ट्स एज अ it protect the plant from microbial it protect the plant from this pathogens and act as an antimicrobial compound। जो बायोकेमिकल्स होते हैं ना, वो एक्ट कैसे करते हैं, बायोकेमिकल बैरियर एक्ट एज an antimicrobial compound। So here the pre-existing structural defense mechanism, the first line of defense in plant, this one is the first line of defense in the plant। Okay, so it presents where it present on the surface में ये leaves के present होता है, और इसका जो इसमें ना बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट सरफेस का, एक तो फर्स्टली जो प्लांट सरफेस का जो है वो कैसा फंक्शन करेगा, एक बैरियर के जैसे फंक्शन करेगा, और इसमें क्या होगा कि ये पेनिट्रेट करेगा, जो पेनिट्रेशन होता है पैथोजन का, उसको वो क्या कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, कि वो एंट्री ना कर पाए होस्ट के अंदर। और दूसरी चीज क्या है, ये जो पैथोजन है ये एंटर करता है जब ना प्लांट होस्ट में पेनिट्रेटिंग करता है। ये कहाँ से करता है, जो एपिडर्मिस है ना वहां से। तो ये क्या करता है, ये ना फोर्सफुली और या तो नेचुरल ओपनिंग या वुंड के थ्रू जो पैथोजन है ये उसमें जो हमारे प्लांट है इसमें जाने की कोशिश करता है। एक तो नेचुरल ओपनिंग जो स्टोमेटा वगैरह से होती है, या वुंड के थ्रू, ठीक है, वुंड के थ्रू होता है, या जैसे कभी इंजरी वगैरह हो गई प्लांट को, है ना, तो इंजरी के थ्रू ये एंटर करने की कोशिश करता है, या तो इंसेक्ट के पंचर से। जैसे कि इंसेक्ट के पंचर यानी कि जैसे हमने लास्ट टाइम पर देखा था कि जैसे इंसेक्ट का पंचर यानी कि फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक निमैटोड्स वगैरह हो गया, निमैटोड के साथ एसोसिएशन हो गया, है ना, और थ्रिप्स हो गया, और एफिड वगैरह हो गया, है ना, तो और हॉपर्स वगैरह जब ये प्लांट को अफेक्ट करता है तो वहां से भी ये जो पैथोजेंस है वो एंटर करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल एपिडर्मिस है ना, वो ये क्या होता है कि जो क्यूटिकल्स है ना, क्यूटिकल्स के ओवरलेइंग होता है क्यूटिकल्स में और क्यूटिकुलर वैक्स में, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो नेचुरल ओपनिंग, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेचुरल ओपनिंग में डिपेंड करता है। जैसे कि स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा, लैंटिकल्स वगैरह, तो ये प्रेजेंट होता है बिफोर इट अटैक द पैथोजन एंड कैन obstruct penetrations। Okay, so if the penetration succeed, what had happened on if the penetration succeed, the pathogen encounter the pre-existing internal structure। Okay, so here the external and the internal structure, uh, it creates a barrier। Okay, it creates a barrier which present before the attack of the pathogens। So the pre-existing uh, uh, the pre-existing will cause effects
to the pathogens. Okay, even after the pathogen can penetrate, it perform the defense structure. One or more types of structure are performed to protect the plant from the further pathogen invasions. Okay, so here we will see the includes this includes the amount of quality of wax. Okay, waxes are there, the cuticles which cover the epidermal cells, and the size, location and the shape of the natural opening. Here the presence of thick wall cells in the tissues of the plant that hinder the advance of the pathogens. So if they get successfully penetrate now, the external or internal structural barrier is there, which before the attack of the pathogen it act, okay, it present before the attack of the pathogen के पहले भी ये presence रहता है. It is called pre-existing defense structure बोला जाता है इसको हम, और या एंटी इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्यूटिकल्स. तो क्यूटिकल्स क्या होता है, ये जो लीव्स में ना ये थिक होते हैं क्यूटिकल्स, ठीक है. ये टफ होता है, आउटर वॉल होता है एपिडर्मल सेल्स का, जो इंक्रीजेस करता है रेजिस्टेंस. ठीक है, ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करता है ताकि जो इन्फेक्शियस है, ठीक है, इन्फेक्शियस किया है जो डिजीज ने, which the pathogen enters in the host only through direct penetrations. Okay, so it increases the resistance, it provides the resistance to the plant. So here what had happened, the cuticle, it is on the surface of the plant cell, I already told you. So it directly, what had happened, it directly exposed to the air, and it is covered by the non-cellular and I can say many layers. Okay, many layers or bipolaris membranes. So that is called cutin. And this layer, what had happened, it generally attached to the different layers of the cells, and that consists of wax. Okay, so जो ये क्यूटिकल्स और वैक्स है ना, ये टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं क्यूटिकल्स को. ओके, फिर जो प्रेजेंस द प्रेजेंस ऑफ वैक्स मेक्स द क्यूटिक इज मोस्ट, जो बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह है ना, इसमें क्या होता है कि ये क्यूटिकल्स जो है ना, वो वो वैरी करता है, इनका इफेक्ट जो है वो वैरी करता है, और इनका इफेक्ट वैरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है वैक्स. तो जो वैक्स है, तो उसमें क्या होता है कि जो लीफ है, वैक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में और फ्रूट के सरफेस में, फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक और वाटर रिपेलेंट सरफेस. ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है हाइड्रोफोबिक और वाटर रिपेलेंट सरफेस को एक्ट करता है ये. और इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन ऑफ फंजाई को एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. जो अगर फंजाई का और बैक्टीरिया का ना मल्टीप्लिकेशन और जर्मिनेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो हियर यू आर सीइंग दिस. Here this is the wax cuticle. In the leaves you can see the wax cuticle is there. This one is the upper epidermis, and it consists of palisade or mesophyll and spongy mesophyll. ये consist करता है. यहाँ पे होता है wax cuticle. In the side the guard cell are present with chloroplast. The lower epidermis, here we are seeing the stomata and the air space is there. The mesophyll, this one is the mesophyll. Okay, so what had happened कि जब जो इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंस मतलब वैक्स के प्रेजेंस में क्या करता है, ये जो क्यूटिकल है ना, ये मोस्टली जो प्लांट में हाईली वाटर रिपेलेंट होता है. ओके, बहुत ज्यादा ये वाटर रिपेलेंट होता है. इसका जो थिकनेस है ना क्यूटिन का, वो क्या होता है, इसमें जो अमाउंट ऑफ जो वैक्सेस जो प्रेजेंट होता है वो डिटरमाइन करता है उसकी एफिशिएंसी को. जो क्यूटिकल्स है ना, उसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है. और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस का इसका मेन फंक्शन होता है. किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट. ठीक है, और ये कॉज करता है डिजीजेस कॉज करता है. अब ये कहाँ डिजीजेस कॉज करता है, लीव्स में और फ्रूट में. ठीक है, और अभी तक नो पैरेट, इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है, जैसे कि फ्यूजेरियम सोलेनाई है,
ठीक है। फॉर्मल स्पेसिस जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम क्यूटिनेज को प्रोड्यूस करता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ये जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, जो क्यूटिन है ना, क्यूटिन को वो ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं क्यूटिन को एज अ उनका मतलब एक ना सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, उसमें कार्बन होता है ना प्रेजेंट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इन देयर न्यूट्रिशन के तौर पे। ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटी होती है ना इफेक्टिव ओनली कब होती है, जब जो क्यूटिन है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है एज अ वो प्रोटेक्टेड नहीं करता है लेयर ऑफ वैक्स को। ठीक है, तो वहां पे ये इफेक्टिव होती है इसकी कैपेसिटी, इसमें ये जो कैपेसिटी है। और इसमें क्या होता है कि जो मेजर डिफेंस स्ट्रक्चर है, द मेजर डिफेंस स्ट्रक्चर is the wax layer, okay, in the cuticle. The major this point must be noted down, this one is the important one, that the major defense structure in the wax uh, layer is the cuticle, which increases, okay, which increases the resistance against fungi and enter the host. Okay, so it enter the host only by the direct penetration. So here the direct penetration we can easily see, the cuticle is supposed to be defend. Okay, it defend itself by the tissue or through the water repellent capacity, which negatively electrical charged. Okay, there we can see the negatively electrical charge of some pathogens and the mechanicals obstruction we can see there. तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर जो फंजाई और बैक्टीरिया है ना, दे नीड अ वाटर टू द प्लांट सरफेस। ओके, दे नीड अ वाटर फॉर द प्लांट टू द प्लांट सरफेस फॉर व्हाट, फॉर देयर germination, for their initial I can say for their initial growth or bacterial cell multiplications. So what had happened here, due to the presence of wax, due to the presence of wax and the uh, cuticles, the hydrophobic surface are developed. Okay, the hydrophobic surface are developed, and which prevent water from the accumulating as a film of or a drop. Okay, so this does not permit the spore germination. Here, it does not permit the spore germination, and the fungi are lacking of cutinase can cause penetrations by applying pressure or forces. This, the absence of moisture due to waxes does not permit these situations. The fatty acids of the cutins impart the surface of the negative electrical charge. Okay, so what had happened? The spores that carry a negative charge is either repelled to the surface, while those having the positive charge are held on the surface. Okay, which held on the surface. So here the antifungal substance that may uh, isolate it. Okay, isolate it from the cuticle or many plant parts. So the presence or the absence of the presence of the antifungal के compound के presence में क्या होता है कि ये इतना better तरीके से ये pre existing biochemical defense के तौर पे ये work करता है. Okay, so here the mechanical obstruction of cuticle has been perhaps seen, or the wax are the important wax are the important for in the preventions of the post harvest. Okay, post harvest of fruit, some fruits के लिए, और they are even externally applied होता है, not only to provide करता है protection to the fruit skin but also as a carrier के तरीके से work भी करता है of fungicides में. ठीक है, और in addition अगर हम बात करें तो penetration of germ tubes or the presence of wax on the fruit skin ये prevent करता है high losses of water from the inside. Okay, so next one we will see the epidermis cells or the structure of epidermis cell walls. तो बहुत सारे मतलब हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रेजिस्टेंस है cuticles का, due to cuticles had conducted that contribution to the cuticle in the defense mechanism. Not only, although in some studies
chemical inhibitor in the cuticle were shown to the play significant role. इसमें क्या होता है कि जो डिजीज मतलब ये जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शंस हैं वो डिपेंड करता है कि थिकनेस और टफनेस, जो वॉल की थिकनेस और टफनेस होती है ना उस पे वो डिपेंड करता है. ओके, सो इवन इफ द वॉल ऑफ द सिमिलर थिकनेस हैव टफ, तो वहां पे क्या होता है कि एक रिलेटिव लिग्निफिकेशन और डिपोजिशन ऑफ सिलिकेसी एसिड कॉज करता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स है यहाँ पे क्या होता है कि ये ना एक तरीके का एक डिग्री ऑफ इन्फेक्शियस ससेप्टेबल होता है. जैसे कि ना ये जो बारबेरी स्पीसीज है ना ये इन्फेक्ट करती है कहाँ पे, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई में. ठीक है, तो ये बारबेरी स्पीसीज है, ये इन्फेक्ट करती है पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई में, और ये एट्रीब्यूट करती है टफ आउटर एपिडर्मल सेल्स को विद अ थिक क्यूटिकल्स, और इन लिंसेड क्यूटिकल इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट मेलमस्पोरम लिनाइन, कि अगेंस्ट ये एज अ बैरियर के समान एक्ट करती है. सो हियर व्हाट हैड हैपेंड, द यंग लीव्स ऑफ दिस स्पीसीज with a minimum this wall thickness, with a minimum, okay, it consists of thick wallness, and it is highly susceptible. Okay, highly susceptible hota hai. So the epidermal cells here, what it work as the resistance के जैसे ये work करते हैं. So here the work formations of the new the entry of these cells, the motor cells and the guard cells, it protect the plant from further invasions. Okay, so basically इसमें क्या होता है कि मोर देन जो हाफ है जर्म ट्यूब्स का वो एंटर करते हैं. कैसे एंटर करेंगे, वो मोटर सेल से ही एंटर करते हैं, और मोटर सेल से एंटर करने के बाद क्या होता है यहाँ पे जो प्रेफरेंस है स्पीसीज सेल्स का, ये एट्रीब्यूट करता है किसमें, जो लिग्निफिकेशन है. इसमें क्या होता है, सिलिफिकेशन और लिग्निफिकेशन जो एपिडर्मल सेल्स है ये प्रोटेक्ट करता है. अगर जैसे पैरिकुलेरिया ओराइजी है, ठीक है, जो राइज में कॉज करता है, तो इससे ये प्रोटेक्ट करता है. स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिसिस जो पैडी और पोटैटो में हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, पैडी और पोटैटो में नहीं, जो पैरिकुलर और राइजी है ना ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, पैरिकुलर और राइजी हमें पैडी में देखने के लिए मिलता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिस कहाँ मिलता है, ये पोटैटो में हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक जो सेल्स है ना वो एंट्री करती है, और इसमें क्या होता है कि फंगस कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू दिस सेल. अगर लिग्निफाइड नहीं है तो फंगस इजीली पेनिट्रेट कर लेता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीवियरिटी है ना राइस ब्लास्ट की, तो वो जो सीवियरिटी है, तो जो राइस ब्लास्ट डिजीज है ना वो क्या होता है, वहां पे एक अमाउंट ऑफ सिलिकिक एसिड जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एप्लीकेशन है जो कैल्शियम सिलिकेट का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ प्लांट अवेलेबल होता है सिलिकॉन में, और इसमें इसमें जो सोर्स ऑफ प्लांट अवेलेबल होता है सिलिकॉन्स में, और ये डेफिशिएंट है किस चीज के लिए, डेफिशिएंट होता है सॉइल में अगर रिड्यूस करता है ये ब्लास्ट को. ठीक है, और ये एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका एसिड है ना लीव्स में, इट इंक्रीजेस विद द एज ऑफ द प्लांट एंड ऑकर इन द वॉल ऑफ द मोटर सेल्स. दिस इज हाउ द susceptibility of the rice to the leaf blast decreases with increasing in the age. Okay, so what had happened when we are transplanting method we used in soil cultivation, the deficiency of the nitrogen increases. Okay, so deficiency of nitrogen increases, it uptakes the silicon by the roots, and so it impart as a resistance at low temperature. What had happened under the condition of high level of nitrogen, uh, it vary with little silica is observed. Okay, and by the root
and susceptibility is increased. This is an the example of the metabolism of the plant which help in development, or otherwise I can say it is the structural defense mechanism. Okay, so here the strength of the epidermis is due to toughness of the polymer or the cellulose and the hemicellulose that make up the cell wall, and here the potato tuber is resistance to the pythium. Okay, potato tuber is resistance to the pythium affinerdatum and have a high fiber content that is susceptible, high fiber content than a susceptible variety. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पैथोजन है ना वो ओवरकम करता है, जो थिकनेस बैरियर है एपिडर्मिस में उस पे ना ये ओवरकम करता है, और यहाँ पे उसके बाद जो टिश्यूज है वो क्वाइट ससेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स में हम हमें ये देखने के लिए मिलता है जो एपिडर्मिस है ना वो रिप्लेस करता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस टिश्यू को, जस्ट लाइक पेरिसाइकल्स। ठीक है, तो ये ऑकर करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को ऑकर करता है ये, और दिस सेल्स कंप्राइजेस दी पेरिडर्मल अराइजेस फ्रॉम दी कॉर कैम्ब्रेन से अराइज होता है, और ये लेयर विच इज रिनेबल as a tree grown provide the strong mechanism resistance against the pathogen। तो ये पैथोजन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट है अब हम उसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑफ नेचुरल ओपनिंग। ठीक है, कि नेचुरल ओपनिंग के थ्रू भी जो नेचुरल ओपनिंग के थ्रू हम किस तरीके से डिफेंस करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा और लेंटिल्स। तो इसमें क्या होता है, प्लांटिकल्स, इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये होस्ट में ना डायरेक्टली कहाँ से, जो नेचुरल ओपनिंग्स होती है ना होस्ट में, स्टोमेटा, वहां से ये एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये स्पेशली जो ट्रू बैक्टीरियल पैथोजन है, ठीक है, और जैसे फंजाई है वो अल्टरनेट मोड से ये पेनिट्रेट करती है स्टोमेटा, और पेनिट्रेट करती है तो स्टोमेटा क्या करता है, इसमें एक ना छोटा सा बहुत ही कम ना प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, सो प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है ताकि जो पैथोजन है ना उसकी एंट्री ना हो पाए। तो जो स्टोमेटा है ये कैसा है, ये मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस को एंटर प्लांट में एंटर करता है, करवाता है ये थ्रू नेचुरल ओपनिंग से, ये यहाँ पे स्टोमेटा के नेचुरल ओपनिंग से एंटर कर लेते हैं। और कुछ पैथोजन जैसे कि स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, वो एंटर करते हैं होस्ट में ओनली थ्रू स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा जब ओपन होता है वहां तभी ये क्या करते हैं, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट ये एंटर करते हैं। तो जो वीट की वैरायटी है, तो वीट की वैरायटी में क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन होता है लेट। ठीक है, वीट की वैरायटी में स्टोमेटा लेट ओपन होता है, मतलब कुछ वैरायटीज जो होती है तो उसमें लेट ओपन होता है डे टाइम में, और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जर्म ट्यूब को, ठीक है, स्पोर की जर्मिनेटिंग करने के लिए इन द नाइट में। तो इसमें क्या होता है कि ड्यू डेसिकेट ओइंग होता है और इवापोरेशन जो डेसिकेटिंग हो जाता है, तो इसमें स्टोमेटा बिफोर stomata begin to open। Okay, so here you can see this is the citrus variety zincum, it is resistance to citrus canker। Okay, this is the stomata opening, it consists of nucleus and guard cell, guard cell is there। So here what had happened, uh, the location, the number and the structure of this opening, okay, is determined by the pathogenicity of the बहुत सारे जो मिनी फंजाइज है उस पर डिपेंड करती है, और जो इन्फेक्शियस है ना वो वैरी करता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल if you talk about infections of peach by xanthomonas, okay, so here uh, these occur only where it occurs when the bacterial suspension is spread
on the under surface of the leaves, okay, and where the stomata are located. And these the Zincum variety of citrus, or I can say mandarin orange, is resistance to Xanthomonas xenopodis. Okay, this is resistance, and it causing because this Xanthomonas xenopodis, what it do? It causing a citrus canker, and because these stomata are small. Okay, here because these stomata are small. And surrounded by the raised, okay, surrounded by the raised broad lipid structure, which prevents the entry of the water drops, okay, and it contains the bacterial cell, okay, it prevents the entry of the water drops which containing the bacterial cell, okay. So uh, um, it was found that the greater the number and the size of the stomata per unit area, okay, per unit area will gives the greater in the susceptibility of the organ, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अगर स्टोमेटा होंगी या उनकी साइज जितनी ज्यादा होगी तो ऑर्गन्स कैसे हो जाएंगे, ससेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इवापोरेशन वगैरह भी उतना ही ज्यादा होने लग जाएगा प्लांट से। और जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई के जर्मिनेशन के चांसेस, इवन दो जो बैक्टीरिया के जर्मिनेशन के चांसेस है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा साइज, जितना ज्यादा नंबर्स होंगे स्टोमेटा के, और जितनी बड़ी इसकी मतलब जितना साइज में ये होगा एज अ पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जो ये स्टोमेटल है ना, ये इन्वेजन, ये क्या होता है, ये अ, इनका ना डेवलपमेंट हो, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो डेवलप करता है इसमें, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये डेवलप्ड होता है। अब जैसे जो सीरियल रस्ट है, तो इसमें क्या होता है, सीरियल रस्ट में इन्फेक्शन होता है ट्यूब से, ठीक है। जो इन्फेक्शस ट्यूब है ना, वो क्या करता है, वो पेनिट्रेट करता है स्टोमेटा से, और जैसे ये पेनिट्रेट करता है स्टोमेटा से, तो जो रस्ट की स्पीसीज है, ठीक है, जो कुछ रस्ट की स्पीसीज क्या करती है, पैथोजन को फोर्स करती है कि वो ओपन हो जाए स्टोमेटा, और जिससे मतलब इस तरीके से फोर्स करती है कि ताकि स्टोमेटा में प्रेशर क्रिएट हो और वो ओपन हो जाए। लेकिन स्टेम रस्ट जो है ना वीट का, स्टेम रस्ट जो वीट का है, पक्सीनिया ग्रैमिनीज, वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। और वो तभी वो उसमें जो प्लांट है उसमें पेनिट्रेट कर पाता है जब उसको स्टोमेटा ओपन दिखे, ठीक है। तभी वो जब स्टोमेटा ओपन होता है तभी वो पेनिट्रेट कर पाता है। अब जो ये फंक्शन है जो डिफेंस मैकेनिज्म का, ये क्या होता है यहाँ पे, ये ऑब्जर्व्ड होते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, जो वीट की वेराइटीज है हमें उनमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है लेट डे में, ठीक है। तो मॉइस्चर क्या होगा लीफ सरफेस से, तो जो मॉइस्चर है ना लीफ सरफेस पे वो ड्राई हो जाएगा, और इन्फेक्शियस जो ट्यूब है ना वो कैसी हो जाएगी, वो नॉन फंक्शनल टाइप की फॉर्म करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एक ना कोरिलेशन एक कोरिलेशन फॉर्म करेगा बिटवीन दी स्टोमेटल ओपन में, जो स्टोमेटा है ना उसके ओपनिंग में, और जो टाइम ऑफ इनोक्यूलेशन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो अमाउंट है ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन्स का टाइम ऑफ इनोक्यूलेशन से, तो ये इन्फेक्शियस कॉज करता है। और यहाँ से ये जो जू स्पोर है, ये सुडोपर्नोस्पोरा ह्यूमिली, ये मतलब ये इफेक्ट कॉज करेगा, अफेक्ट करेगा प्लांट को। अब जो इसीलिए ये जो स्टोमेटल है ये फंक्शनल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी फंक्शन किया जाता है, करता है, अगर इनका साइज और नंबर ना कम हो, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा का है वो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस
कब पेनिट्रेशन करने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि पेनिट्रेट नहीं करने देता है दैट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, तो उनको उनसे ये प्रोटेक्ट करता है और पेनिट्रेट नहीं करने देता है। ठीक है। और सिट्रस की वैरायटीज में हमने देखा था कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सिट्रस कैंकर। ठीक है। तो सिट्रस कैंकर के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो पजल्स करता है एक ब्रॉड क्यूटिकल रिज प्रोजेक्टिंग ओवर द स्टोमेटल एंड अ नैरो सिल्ट that leading to stomatal cavity, thus it prevents the entry of the bacteria, और बैक्टीरिया की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करता है, और जो फंगल स्पोर्स है इनटू द इंफीरियर ऑफ द लीव्स में it prevents. Okay. So now next one we will see the lenticles. Here the shape and the internal structure of the lenticles can be increases or decreases. It depends on the incidence of the fruit diseases or the degree of the pathogen caused the diseases in the plant. Okay, it's depend on that things. So here what had happened when the entry of the pathogen through lenticles occur, um, the many fungal, okay, like in many fungals what had happened in many fungals and bacteria, this will affecting where it will affect the twigs, the fruits, the tuber, etc. Okay, so here it will affect. And what had happened, the shape and the internal structure of the lenticles can be increases or decreases. Okay, जो शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लैंटिकल्स का वो क्या होता है, वो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है इंसिडेंस ऑफ फ्रूट की डिजीज को। और जो ये लैंटिकल्स है ये कैसा होता है, ये स्मॉल साइज में होता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है एंट्री ऑफ पैथोजन को। ओके, इन एडिशन these sublayer layers जो है बेनिथ होता है लेंटिकल्स के, ये ऑल्सो ये ऑल्सो क्रिएट करता है एक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। ठीक है, कि ताकि पेनिट्रेट ना कर पाए और डेवलपमेंट ना हो पाए इन्फेक्शन ट्यूब्स का। एंड व्हेन द लेंटिकल्स आर enters when the lenticles are enters the pathogens, it prevented. Okay, lenticles are the primary site of infections of young potato tuber. You can see here, this is the young potato tuber, and here the lenticles are the primary site of infections. Okay, and the stems, this is the stems. Okay. Here, the streptomyces scabies, the common scab diseases of potato. However, here what had happened, the infections in this bacterium occur in further stages, and the tissues of the young lenticles exposed. Okay, तो यहाँ पे exposed होता है वो, और वहाँ पे loss होता है गार्ड सेल का लॉसेस होने लग जाता है। और वैसे ही हमें यहाँ पे आपको यहाँ पे एप्पल में भी आपको ये जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे ये लैंटिकल्स है। हियर यू कैन सी द लैंटिकल्स एंड द lenticles, what it do, it obstruct the penetration and development of the infectious tubes का penetration और development पे ये रोकता है। ठीक है, so we can see the hydanthos, जो हाइडेंथॉट्स है ना, ये भी एक नेचुरल ओपनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो एज ऑफ द लीव्स पे, और ये सर्व करता है एज अ ये एक एक्सक्रीट करता है जो एक्सेस जो वाटर है ना इंफीरियर साइड से, इसमें ये एक्सीट करता है। और ये क्या होता है, ये जो अर्ली एंट्री पॉइंट है बैक्टीरियल पैथोजन की, जैसे कि ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवार कैम्पेस्ट्रिस, जो ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज है, तो इसमें ये क्या करती है, अर्ली पॉइंट होता है बैक्टीरियल पैथोजन का। ठीक है, और वैसे ही क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है ना बहुत सारे प्लांट्स में, इसमें भी ये अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो ये सीक्रेट क्या करता है, ये एक शुगरी नेक्टर सीक्रेट करता है और सर्व करता है एज अ बैरियर। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो टॉलरेट नहीं कर पाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है,
उनमें एज अ बैरियर के समान ये वर्क करता है। जैसे इरिविनिया अमाइलोपोरा है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये इट कैन नॉट टॉलरेट, ये टॉलरेट नहीं कर पाते जो हाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स है ना, उससे ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अब जो ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स है, तो इसमें क्या होता है, तो ये इसमें टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स में। तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर अब जब ये टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, तो ये ना एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है, इनका जो एंटर होता है ना नेक्ट्राइन के थ्रू, तो ये इजीली एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये जो लीफ हेयर्स है, ग्लैब्रस जो लीव्स वगैरह जो इसमें है, तो ये भी क्या करती है, रेजिस्टेंस एंट्री प्रोवाइड करती है पैथोजन को। ओके, जो हाई हेयरलेस जो लीव्स है, पॉड्स है चिकपी में, ये भी एक तरीके का ना रेजिस्टेंस कैरेक्टर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एस्कोकार्टा रेबिसिस जो है ना, रेबाई, उसमें ये कॉज करती है। जो ग्राउंडनट की वेराइटीज है, इट शोज द रेजिस्टेंस to Cercospora leaf spot and having a thick it consists of thick epidermis cum cuticle. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट प्लस एक ना कॉम्पैक्ट लेयर फॉर्म करता है। और इसमें क्या होता है, ये स्मॉलर होता है, स्टोमेटिक स्मॉलर होता है स्टोमेटा में, और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्राइकोन्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे। अब जो बेसिकली इसमें जो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में ना, जो ये नेचुरल ओपनिंग जो स्टोमेटा का है, लेंटिल्स और स्टोमेटा का, और एपिडर्मल सेल्स और क्यूटिकल्स, ये ये चारों के चारों सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एक जो रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस होता है ना प्लांट को पैथोजन से, ये सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। एज अ फिजिकल बैरियर के जैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर के जैसे वर्क करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट में, so that it will what it will do, it will create some kind of physical barrier for the plants, so the entry of the pathogen can be the entry जो एंट्री होती है पैथोजन की, वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके, तो अब देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये सिंक्राइमा जो सेल्स होते हैं ना, जो स्क्लेरेंकाइमा जो सेल होता है, जो सिंक्राइटिक फॉर्म में होता है ये, तो ये क्या होता है, इसमें स्टेम में और लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में और लीफ के वेन्स में। अब ये वहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये एक ना ब्लॉक के समान वर्क करता है, ठीक है, ये एक ब्लॉक के समान वर्क करता है, जो कि जो स्प्रेड होता है ना, जो कुछ फंगल और बैक्टीरिया पैथोजेंस को, ठीक है, तो उनके स्प्रेड होने से ये रोकता है, ठीक है। और ये कॉज करता है एक एंगुलर लीफ स्पॉट के जैसा, ये कॉज करता है इसमें। और जो पीथियम की जो स्पीसीज है ना, तो वहां पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एज अ सेकेंडरी थिकनिंग के जैसा रहता है, और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो थिकनेस और जो टफनेस है ना वॉल की, जो इंटरनल टिश्यू है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि वो पैथोजन के इन्वेजन्स में, मतलब इन्वेजन्स करने, पैथोजन जो उसमें इन्वेजन्स ना कर पाए, इसलिए ये इनका इनकी जो थिकनेस और टफनेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। तो जो थिकनेस होती है और जो टफनेस होती है, वो कैसी होती है, वो इंक्रीज करती है। ओके, तो वो ना इंक्रीज करेगी, और जो ग्रोथ है ना पैथोजन का, वो कैसा हो जाएगा, वो स्लो स्लो ग्रोथ हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे जो लीफ है ना, उसमें क्या होता है कि जो डिजीजेस वगैरह है, स्पॉट्स है और नेक्रोटिक लीजन्स है ना, तो ये क्या होता है, ये सराउंडेड होता है किससे, जो लीफ वेन्स है ना, इससे ये ना सराउंडेड होता है, और ये इंडिकेट करता है पैथोजेंस को, ठीक है।
ये इंडिकेट करेगा पैथोजन को, और अनेबल होता है, डिसइंटीग्रेट करता है टिश्यूज ऑफ वेन्स को, जो कि स्प्रेड मतलब एक ना ऑब्स्ट्रक्टर फॉर्म करता है इसके स्प्रेड में। अब जो स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है ना, वो कैसा होता है, जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है वो अ, वो किसका बना हुआ होता है, वो थिक और टफ वॉल का बना हुआ होता है ये सेल, ठीक है, थिक और टफ वॉल का बना हुआ होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसका जो ना अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूशन का टिश्यूज में, इसका जो अमाउंट्स है, तो वो क्या होता है, वो वैरी करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का इसका जो अमाउंट है टिश्यू का, वो वेरीज करता है डिफरेंट स्पीसीज में। और जो प्लांट्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है उसमें ये वैरी करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वीट की वैरायटी है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो वीट की वैरायटी में ना ये कंटेन करता है टिश्यूज, जो कंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाईली प्रोपोर्शनल होता है स्टेम में, ठीक है, और ये पजेस करता है एक सर्टन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस पजेस करता है स्टेम रस्ट में, जिसको हम बोलते हैं पक्सिनिया ग्रैनुलोसिस। और जो लीफ है ना स्मट ऑफ राइस का, ठीक है, तो इसमें ये प्रोड्यूस करता है एक डल ब्लैक लीनियर स्पॉट को प्रोड्यूस करता है लीव्स पे। तो ये क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है लीव्स वेन को। और मतलब कुछ रीजन की वजह से क्या होता है कि जो ये यूज है ना हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर का, ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर का यूज क्या होता है, अम, अ, जैसे हमने ना हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर का यूज किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये ना एज अ मैकेनिकल बैरियर के जैसे वर्क करने लग जाता है, ठीक है, और मैकेनिकल बैरियर के जैसे ये वर्क करता है। लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर का डोजेस ज्यादा कर दिया तो ये ना वीक हो जाता है, ओके, और ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। और इसकी रेजिस्टेंस जो प्लांट की जो रेजिस्टेंस है ना जो पैथोजन का इन्वेजन करने की, रोकने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, वो वो ना डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, वो रिड्यूस होने लग जाती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें। और ये वैरी करता है, ये वैरी करता है प्लांट टू प्लांट, क्रॉप प्लांट टू प्लांट, क्रॉप टू क्रॉप जो है ना, ये वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, वैरायटी टू वैरायटी, ये जो वैरायटी टू वैरायटी है डिपेंड करेगा, ठीक है। और इवन दो कि कौन सा स्पीसीज अफेक्ट कर रहा है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो जैसे ना पीथियम है, तो पीथियम क्या होता है कि पीथियम जब ना जिम्नाइल टिश्यू में रहता है, तो ये ना सिर्फ जिम्नाइल टिश्यू में ही ये क्या करता है, इन्वाइट कर पाता है अपने आप को, ओके। और अगर सेकेंडरी थिकनिंग होने लग गई जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, तो अगर अगर क्या होता है, अगर जो सिडलिंग्स अगर रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस हो गई, जैसे कि अगर एडवांस अपने एज में अगर सिडलिंग रेजिस्टेंस हो गई, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी थिकनिंग है ना वो भी बनने लग जाएगी, है ना, तो सेकेंडरी थिकनिंग बनने लग जाएगी। और और वहां पे क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है किस चीज का, बायोकेमिकल जो फैक्टर्स है ना इस एज में उनका इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है। और ये बेस्ड होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, कि ये एज के बेस पे होता है डिपेंड। लिग्निफिकेशन, सब लिग्निफिकेशन इसमें डिपोजिशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और इनका ये डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ना स्ट्रेंथ किया जाता है इंटरनल जो टिश्यू है ना उसको, जो मैकेनिकल बैरियर है ना वो स्ट्रेंथ करता है उसको, ठीक है, कि इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो प्लांट का डिपेंड करेगा उसके किससे डिपेंड करेगा, कि जो थिकनेस और जो टफनेस है, ठीक है, प्लांट की वॉल का, जो वॉल होती है ना आउटर वॉल, द आउटर वॉल, द वॉल ऑफ द सेल, इट विल डिपेंड ऑन इट विल डिपेंड ऑन द प्लांट, ओके।
So here what had happened, the growth of the plant, इसमें हमें ये भी देखने के लिए मिलता है जो पैथोजन का ग्रोथ है ना वो स्लो होने लग जाता है, क्योंकि अगर आपकी वॉल जितनी ज्यादा टफ और थिक रहेगी तो उसके हिसाब से उसी तरीके से जो ये पैथोजन है ये आपका इतनी इजीली आपका ग्रो नहीं कर पाता, इतनी इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है, प्लांट के अंदर। इट रिक्वायर्ड कि ये प्लांट की जो वॉल को पहले ये प्लांट की वॉल को वीक करे, ठीक है, प्लांट की वॉल को वीक करे, ताकि प्लांट की अगर वॉल को वीक करेगा तभी तो इसका जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है वो जर्मिनेट कर पाएगा प्लांट को, है ना। और जो वैक्स है और जो वैक्सेस वगैरह है और जो क्यूटिकल है ये ना इजीली एज अ बैरियर के जैसा वर्क करने लग जाएगा, है ना। तो जब ये वर्क करने लग जाएगा तो इसमें क्या होगा कि जो स्पोर्स है बैक्टीरिया फंजाई के, जो बैक्टीरिया फंजाई के जो स्पोर्स वगैरह है ना, और बैक्टीरिया वगैरह, तो इसको ये अपने सरफेस पे टिकने नहीं देता है, ठीक है। जो सरफेस है ना, तो ये ना सरफेस में इजीली टिकने नहीं देता है। और जो ये स्ट्रक्चरल जो डिफेंस है ये क्या करता है, ये प्लांट के होस्ट में ना पहला लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि जो ये पैथोजन है वो एडर नहीं कर पाता सरफेस और पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और ये कॉज क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और हम मैंने आपको बताया था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, उसमें वैक्स होता है, एक थिक क्यूटिकल होता है, एक थिकनिंग जो टफनेस होती है किसकी, आउटर वॉल की, ठीक है, कहाँ पे, एपिडर्मल सेल्स में और स्टोमेटा में, एपिडर्मल सेल्स में होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्टोमेटा भी होता है, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स वगैरह होते हैं, लैंटिल्स होते हैं, है ना। तो ये इनमें होता है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग जो है इसमें जो जो ये वैक्स है ना, तो इसमें वैक्स का क्या होता है, वैक्स से एक मिक्सचर होती है लॉन्ग चेन की, ठीक है, जो एपोलर लिपिड के फॉर्म में होती है। तो ये फॉर्म करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, कोटिंग फॉर्म करता है प्लांट के लीव्स में, फ्रूट्स वगैरह में, ठीक है। और ये किसका सिंथेसाइजेस होता है, ये एपिडर्मिस का सिंथेसाइजेस होता है, जो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये ना, ये एक तरीके का जो मतलब ये क्या करता है कि ये ना एक तरीके का प्री एग्जिस्टिंग वर्क फॉर्म करता है विच एग्जिस्ट इन द प्लांट even before the pathogen comes in contact with the plants, और इसके वजह से इंड्यूस करता है, ठीक है, आफ्टर द पैथोजन हैज पेनिट्रेट the perform defense structure or the one or one type of structure are performed to protect the plant from the further invasions. So बेसिकली आज हमने डिफेंस जो मैकेनिज्म है प्लांट्स का, तो प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में आज हमने क्या देखा, आज हमने जो प्री इन्फेक्शियस जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग भी कहते हैं, आज हमने उसके बारे में देखा कि डिफेंस मैकेनिज्म में दो तरीके से होता है, प्री एग्जिस्टिंग और प्री इन्फेक्शियस होते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल फॉर्म में होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल फॉर्म में होते हैं, और वहीं जो पोस्ट इन्फेक्शन है वो भी स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल फॉर्म में ही होते हैं। और जो प्री एग्जिस्टिंग में जो स्ट्रक्चरल फॉर्म आज हमने देखा, बायोकेमिकल फॉर्म कल देखेंगे, और जो प्री एग्जिस्टिंग जो फॉर्म है उसमें हमने स्ट्रक्चरल वन में भी हमने प्री एग्जिस्टिंग को एक और चीज कहा जाता है, इसको पैसिव भी बोला जाता है, ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग है इसको पैसिव बोला जाता है, और जो पोस्ट एग्जिस्टिंग है उसको एक्टिव बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पोस्ट एग्जिस्टिंग में क्या हो जाता है कि ऑलरेडी जो पैथोजन है वो पेनिट्रेट कर चुका होता है, ठीक है, अब वो पेनिट्रेट कर चुका होता है, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो चुका है, अब उसके बाद फिर फर्दर जो
फर्दर किस तरीके से प्लांट अपने आप को अपने अंदर जो इंड्यूस करेगा सेलुलर डिफेंस को, और वो अपने आप को किस तरीके से प्रिवेंट करेगा इस कॉलन जो कॉलोनाइजेशन हो गया है जो टिश्यूज का, है ना। और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि ऑलरेडी प्री डिफेंस मैकेनिज्म से वो गुजर चुका है, ठीक है। तो एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म आगे फिर किस तरीके से वर्क कर पाएगा, और ये किस तरीके से इंड्यूस कर पाएगा अपना डिफेंस सिस्टम को, ये डिस्क्राइब कर पाएगा कि मतलब किस तरीके से ये रिस्पॉन्स कर पाएगा पैथोजन को, और ये एक होस्ट मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के जैसे एक्ट करेगा, और एक्टिव रहेगा, डिफेंस रिस्पॉन्सिबल करेगा, रिड्यूस करेगा सारी जितनी भी क्लासेस है ना पैथोजेंस की उसमें, और ये इंड्यूस करेगा वेरियस काइंड्स वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और निमेटोड्स का ये क्या करेगा, मतलब इंड्यूस जो ये जितने भी ये प्लांट्स है इसमें एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से इंड्यूस होगा, ये हम कल देखेंगे इस पार्ट में। कल हम फर्दर देखेंगे प्री एग्जिस्टिंग का फर्दर पार्ट हम देखेंगे, जिसमें हम कल जो हमारा बायोकेमिकल है, तो जो बायोकेमिकल जो पार्ट है प्री एग्जिस्टिंग का डिफेंस मैकेनिज्म का, तो वो हम कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।